हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा बेटा चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस जस्ट लाइक you have done your quadratic equations, linear equation in your 10th class and 11th class. 11th क्लास में आप 10th क्लास में भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते थे, जिनमें हम क्वाड्रेटिक और लीनियर जिनमें एक्स और वाई वेरिएबल्स हो जाते थे। तो जब हमारे पास वेरिएबल्स एक्स और वाई में आता है तो हम उसे अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने क्लास 10th में की है। लेकिन 11th क्लास में जब आप आए तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस भी की हैं। मींस वहाँ पे वेरिएबल्स एक्स और वाई के बजाय ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आ जाते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, ऑल दोस। और अब हमारे पास आ रही है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस मींस चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। So what is differential equation? First of all, we need to discuss what is differential equation. Differential equation होती क्या है? So suppose we are having a function y is equal to fx. Y is equal to fx हमारे पास कोई भी function है. Suppose y is equal to sin x, y is equal to x square, y is equal to e raised to power x, whatever the type of that function. Here two variables are there, x, y and x. Y is a function of x, so that's why this x is called independent variable. इस x को हम बोलते हैं independent variable of this function, and this value of y that depend on this x, वो x पे depend करती है, तो y को हम कहते हैं this is dependent variable because this is dependent on variable x. Now जब आप इस function का derivative करते हैं तो derivative of y with respect to x, so we get dy upon dx, that is first order differential. This is d square y upon dx square. This is second order derivative, third order derivative, fourth order derivative. So these are derivative of y with respect to x, first order, second order, third order, and etc. So then we can define this differential equation. Differential equation is an equation which involves independent variables. That means y, जिसमें y आता है, dependent variable जिसमें x आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस जिसमें x आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y आता है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव दीज आर dy upon dx and d square y upon dx. तो a differential equation is an equation which involves independent variable, dependent variable, and their derivatives. And their derivative is called differential equation. For example, dy upon dx plus y is equal to 0. So this is differential equation, one example of differential equation. Second is d square y upon dx square plus x plus y into dy upon dx plus xy, etc. This is another example of differential equation. Third, d square y upon dx square raised to power 3, और इस तरह से आप कोई भी लिख सकते हो, plus 5 into dy upon dx raised to power 5 plus 6 is equal to 0. This is, and now next one is d square y upon dx raised to power 2 plus 1 plus dy upon dx raised to power 2. कई बार पावर फ्रैक्शंस में भी आ जाती है। तो इक्वेशन विच इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स x, डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स y, एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए, तभी आपकी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कही जाएगी। लाइक दिस एग्जांपल नंबर 5, दिस इज d square y upon dx square equal to cos of dy upon dx, etc. ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हमारे बुक में लिखे हुए हैं, और जितने भी हम इस क्वेश्चन इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस करेंगे, ऑल आर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, इस चैप्टर में हमें दो काम करने हैं। वन इज फर्स्टली आइडेंटिफाई डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सेकंड इज वी नीड टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट टॉपिक इज दिस, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. Then after that, two main points are there. One is you have to form the differential equation from the given condition, that is formation of differential equation. And second is आपको differential equation दे रखी होगी, you have to solve that differential equation. So these two are vice versa. आपको फंक्शन दिया होगा तो you have to form the differential equation. Second is आपको differential equation दे रखी होगी, you have to find their solution. बट इस साल की जो हमारे ये सेशन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से कुछ हमारा सीबीएसई का सिलेबस कम किया, तो इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वाला टॉपिक नहीं है। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हैं, उनका सॉल्यूशन करना है, एंड मेनली वी हैव 3 मेथड्स, जिनमें से एक मेथड आपके पास पूछा जाएगा।
तो पहले हम वन बाय वन करके सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मीन्स जैसे हमारे पास मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो इनमें क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 में वी हैव दिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, while in example 2 we have second order derivative, first order भी है second भी है। in example 3 we have second order as well as first order। in example number 4 we have second order, यहाँ पे first order है। यहाँ पे आप थर्ड ऑर्डर भी ले सकते हो, doesn't matter, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मैं थर्ड ऑर्डर ले लूँ, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल। तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर के भी, सेकेंड ऑर्डर के भी, थर्ड ऑर्डर के भी। तो व्हाट इज ऑर्डर। First point is order of differential equation। तो it is a number, ये एक नंबर है, it is a number which is equal to the highest derivative, equal to the highest order of derivative in given डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव होता है उस ऑर्डर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिखें तो व्हाट अबाउट ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ दिस फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा उसका ऑर्डर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड में डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो फर्स्ट डिग्री और डेरिवेटिव ऑर्डर का डेरिवेटिव भी और सेकंड ऑर्डर का भी। तो वी नीड टू सेलेक्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 2 आएगा। देन थर्ड में आ जाए तो थर्ड में आप देखते हो ये डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर रेज टू पावर 3 एंड दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 5। तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर पावर ऑफ डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव का ऑर्डर चेक करना, नॉट पावर। तो इसका पावर तो 3 है, लेकिन यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर भी आपका ऑर्डर हो जाएगा 2, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर ऑर्डर कितना है, नॉट पावर। नाउ एग्जांपल नंबर 4 में दिस इज डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू रेज टू पावर 2 एंड हियर इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 2 देन होल पावर 3 बाय 2। तो वी आर लुकिंग फॉर द डिग्री ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, whether it is first order, second order, third order or fourth order. So this is first order derivative, this one is third order derivative, that's why, and we are looking for highest order derivative, so highest order derivative is 3, तो यहाँ पे third order derivative आ रहा है। फिर बेटा लास्ट में पांचवें में देखिए आप, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है। तो पांचवें एग्जाम्पल में हमारा डेरिवेटिव फिर से 2 आ जाएगा। इट्स लाइक दिस, this is highest order derivative of the given differential equation। Now second point is degree of differential equation। degree क्या होगी of differential equation। तो degree means हमारे पास हम जो कई बार बोलते हैं, suppose we have this equation x is equal to 2x is equal to 1 root x। तो what do you think, ये जो इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, ये कौन सी इक्वेशन है? इज इट लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और व्हाटएवर। इसको कैसे कहेंगे हम, किस तरह की इक्वेशन है? देखिए उधर अंडर रूट दिया हुआ है, तो जब हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो उसके जितनी भी फ्रैक्शनल पावर होती हैं या फिर नेगेटिव पावर होती हैं, जैसे इसके साथ में दूसरा एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ, x + 1 अपॉन x इक्वल टू 0, यहाँ पे x की पावर -1 है। So what is order of these two equations? These are not differential equations, these are simple algebraic equations, differential equations नहीं है। But here x raised to power -1 and here x raised to power 1/2। तो जब भी आपको किसी इक्वेशंस की डिग्री देखनी होती थी, whether it is linear और second order और third order और fourth order, तो first of all we have to convert in its standard form। Standard form means कि कहीं पे भी x की पावर फ्रैक्शंस और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना तो नेगेटिव में होनी चाहिए x वेरिएबल की पावर, ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटे 1/2 है, तो इसलिए हम इसको स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे। तो वी गेट हियर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x, दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0।
एंड दिस इज नथिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद डिग्री 2 और इसकी डिग्री होती है 2। अब आपने डिग्री कहाँ से निकाली इसकी? दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ योर एल्जेब्रिक टर्म। जो आपके पास एक एल्जेब्रिक टर्म है x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? तो यहाँ पे x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है, तो डिग्री इज व्हाट? दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ योर एल्जेब्रिक टर्म। जो एल्जेब्रिक टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? सिमिलरली हियर दिस इज 1/x। नेगेटिव पावर हटानी होगी, जैसे हमने यहाँ से फ्रैक्शनल पावर हटाई। तो नेगेटिव पावर हटाने के लिए बेटा आप एलसीएम ले सकते हो। x एलसीएम लिया तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो वी गेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आ गई x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर भी नाउ दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई नेगेटिव x की कोई नेगेटिव पावर नहीं है, फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो इसलिए इसका भी और डिग्री क्या हो जाएगी? 2। सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो किसी भी इक्वेशन की जब आपने डिग्री निकाल ली, डिग्री मीन्स पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे x है तो x की पावर चेक करेंगे, तो आप उस इक्वेशंस को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। स्टैंडर्ड मीन्स कहीं पे भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, अगर हैं तो उनको हटाओ पहले, उसके बाद आप डिग्री डिसाइड करेंगे। एग्जैक्टली सेम इन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे जो काम x करता है वो यहाँ पे डेरिवेटिव करेगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट करेंगे। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं, उनकी डिग्री जब आप चेक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्टली वी हैव टू फर्स्टली वी कन्वर्ट इक्वेशंस या डिफरेंशियल इक्वेशंस in standard form. Standard form means that is if powers of derivatives, अगर derivatives की जो पावर है, powers of derivative are in fraction में हो, और in fraction और negative, या तो फ्रैक्शन में हो नेगेटिव हो, देन आर इन फ्रैक्शन, देन चेंज देम, उनको चेंज करेंगे हम, चेंज देम इन होल नंबर। तो उनको हमने होल नंबर में चेंज करना है बाय स्केलिंग और वट एवर। जैसे यहाँ पे मान लो सपोज करो 3/2 आ रहा है तो हम स्केलिंग बोथ साइड कर सकते हैं, कहीं पे क्यूब रूट आए तो हम क्यूबिंग बोथ साइड कर सकते हैं। तो देन उसके बाद चेंज करने स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए नंबर, फिर से एक नंबर आएगा, विच इज इक्वल टू द पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे लिख दो ऑर्डर डेरिवेटिव। जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी होगी? वी आर टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कब? जब आपकी इक्वेशन किस में हो जाए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। फर्स्टली वी कन्वर्ट आवर डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ नंबर विच इज इक्वल टू द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जो इक्वेशन एग्जांपल नंबर हमने 1 लिया हुआ है उसमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx, इसकी पावर ऑलरेडी 1 है, नेगेटिव पावर नहीं है और कोई भी फ्रैक्शन में पावर नहीं है। फ्रैक्शन में पावर सिर्फ हमने dy/dx की पावर चेक करनी है, वो पावर नेगेटिव में या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। डिफरेंशियल डेरिवेटिव की, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे dy/x की पावर 2 लेकिन ऊपर फिर 3/2 आ रहा है, तो 3/2 से हमें 2 हटाना पड़ेगा, फ्रैक्शन नहीं है। या कुछ 3/4 ले लो या वट एवर, जो भी आप लेना चाहते हो, 3/4 ले लिया आपने, वट एवर जो भी है कुछ, तो आपको ये पावर हटानी पड़ेगी जी। तो व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं? इस फर्स्ट का ऑर्डर 1 है बिकॉज इट हैज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका ऑर्डर था यहाँ पे बच्चे, दिस इज ऑर्डर, दिस वन इज ऑर्डर। तो डिग्री भी मैं यहीं लिख देता हूं, डिग्री ऑर्डर एंड डिग्री। तो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो 1, डिग्री भी 1 के इक्वल हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि इसमें पावर भी 1 है। डिग्री हमें पावर से पता लगती है, डिफरेंशियल डेरिवेटिव की पावर कितनी है। यहाँ पे पावर 1 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1 है। यहाँ पे देखिए ये डबल डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हुआ, दिस वन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसलिए ऑर्डर तो होगा 2। सपोज करो इसकी पावर 3 कर दूं मैं, और इसकी पावर मान लो मैंने 4 कर दिया, इसकी पावर 4 कर दो, इसकी पावर 3 कर दें, तो इसका ऑर्डर फिर भी 2 रहेगा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर है। लेकिन अब हाईएस्ट ऑर्डर की पावर चेक करनी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 और उसकी पावर 3 है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 4 है। तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर नहीं देखनी बल्कि सेकेंड ऑर्डर की देखनी है। वी लुक फॉर द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर इज 2 और उसकी पावर 3 है, तो डिग्री 3 होती है। देन नेक्स्ट वन, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy अपॉन dx है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर सबसे बड़ा है, उसकी पावर 3 है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर की पावर 5 है, तो यहाँ पर भी डिग्री 3 ही देखेंगे। देन हियर दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस वन इज dy अपॉन dx रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3/7 लिख देता हूँ मैं, 3 कुछ और लिख लो, मान लो 4/3 लिख लिया आपने, या समथिंग एल्स। तो यहाँ पे बेटा ऑर्डर तो 3 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर है, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज समथिंग एल्स, यहाँ फ्रैक्शन आ रहा है, तो हम डिग्री तब तक नहीं बता सकते जब तक आपके डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ जाती। तो व्हाट वी कैन डू यार, यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रैक्शन है या नेगेटिव, उसे हटाना पड़ेगा, तो आप इस फ्रैक्शन को हटाएंगे तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, इसको क्यूब करेंगे बेटा, उधर भी पावर 3 हो जाएगी, इधर भी पावर, जब आप इधर पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 और आएगी, तो डिग्री 6 हो जाएगी। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 में चेक करिए, जब हम डिग्री चेक करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री डिफाइन नहीं होती। क्यों, क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका एंगल, जैसे हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म आ गई, मान लो साइन या लॉग आ जाता है, या फिर ई रेज़ टू पावर आ जाता है, समथिंग लाइक दिस, या फिर इनवर्स में आ जाता है, टेंजेंट इनवर्स या समथिंग कुछ भी, तो यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। लॉग ऑफ एंगल में कहीं पे डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ई की पावर में डेरिवेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव, यानी dy अपॉन dx, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये डेरिवेटिव नहीं होने चाहिए। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अंदर एंगल में डेरिवेटिव, लॉग के अंदर डेरिवेटिव, ई की पावर में डेरिवेटिव, या टेन इनवर्स की पावर में, टेन इनवर्स के एंगल में डेरिवेटिव आ जाता है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस का डिग्री डिफाइन नहीं करता। बट अगर आ जाता है तो हम पहले हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, एग्जांपल सुनिए, साइन dy अपॉन dx इज इक्वल टू x आ जाता है, और मैं बोलता हूँ आपसे फाइंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, उसके साथ डेरिवेटिव आ गया, तो आप कोशिश करो dy अपॉन dx के आगे से साइन हट जाए। अगर dy को डेरिवेटिव के आगे से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म या एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक जो लगी हुई है वो हटा सको तो इसकी डिग्री बता देंगे हम, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो हम देखो इसमें हटा सकते हैं, हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो नाउ इट्स ऑर्डर इज 1, इसका ऑर्डर 1 है, तो डिग्री भी, डिग्री मतलब पावर, इसकी जो पावर है दैट इज ऑल्सो 1। तो हम ऑर्डर भी बता पा रहे हैं, डिग्री भी बता पा रहे हैं। बट अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए, देखिए कोई एक और एग्जांपल देता हूँ, ये मिटा लेता हूँ मैं। अगर कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए जिसमें तुम हटा नहीं पाओ, जैसे हमने यहाँ तो हटा दिया, और कुछ दूसरा एग्जांपल ऐसा हो सकता है, एग्जांपल 2, कि यही क्वेश्चन ले लो मैं, साइन ऑफ dy अपॉन dx, हमने उधर x ले लिया था, और सपोज करो मैं उधर डबल डेरिवेटिव ले लूँ। नाउ व्हाट इज इट्स ऑर्डर, तो ऑर्डर तो 2 होगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसमें, लेकिन यहाँ dy अपॉन dx के साथ साइन आ गया, तो इसको हटाने की कोशिश करता हूँ, तो टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, जैसे यहाँ लिया टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो इधर साइन इनवर्स x हुआ, तो ऐसे केस में राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स लग जाएगा डबल डेरिवेटिव के साथ, तो इधर से हटाया तो उधर लिखा जाता है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। देयरफॉर वी कैन से order of this differential equation is 2 and degree of this differential equation that is not defined, डिग्री इसकी डिफाइन नहीं होगी। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए dy dx,
किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ डी बाई डी एक्स आ जाए, किसी ई रेज टू पावर में आ जाए, किसी लॉग के एंगल में आ जाए, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। हम पहले हटाने की कोशिश करेंगे, अगर हम हटा पाए तो ठीक है, जैसे कि इसको एग्जाम्पल में हटा दिया तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी, लेकिन जब दूसरे में हटाने की कोशिश की तो नहीं हटा पा रहे हैं, इसलिए डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अब आप एग्जाम्पल नंबर 5 में आए तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर हम यहाँ से कोस हटाएंगे बेटा तो टेकिंग कोस इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ कोस इनवर्स लग जाएगा, तो इसलिए इस एग्जाम्पल की डिग्री नॉट डिफाइंड आ जाएगी, डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, अब हम 11.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, इसमें आपको देखते पता लग जाएगा, और अगर कहीं पावर नेगेटिव में या फ्रैक्शन में है तो डिग्री बताने के लिए उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऑर्डर तो आप ऐसे बता सकते हो, लेकिन डिग्री बताना है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके ही आना पड़ेगा। तो लेट्स सी योर एक्सरसाइज 11.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन है से डिटरमिन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 cos x इंटू डी वाई प्लस साइन cos y इंटू डी वाई, cos y इंटू डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे डी एक्स cos x इंटू डी, तो आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हो। cos y डी वाई इक्वल टू माइनस cos x इंटू डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस cos ऑफ x अपॉन cos ऑफ y। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ऑर्डर ऑफ दिस इज 1 एंड डिग्री इज आल्सो 1, डिग्री भी 1 हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल में भी ऐसे कर सकते हो, थर्ड में भी ऐसे हो जाएगा बेटा। फोर्थ में देख लो आप, फोर्थ क्वेश्चन में फिर बताता हूँ। फोर्थ वन ये कहता है, फोर्थ में डी वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3y इंटू डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आया हुआ 2013 और 2008 में। तो व्हाट इज ऑर्डर, हमें ऑर्डर जब चेक करना हो तो वी लुक फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज दिस, तो इसलिए ऑर्डर 2 हुआ। व्हाट अबाउट डिग्री, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, तो डी स्केयर वाई अपॉन डी स्केयर की पावर तो 1 दिख रही है, तो डिग्री 1 है। इससे को नहीं देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर से बड़ा सेकंड ऑर्डर आ रहा है। ओके, फिर एक क्वेश्चन आ जाता है 9th हमारे पास बेटे, वो लिखता है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और अंडर रूट है इसके ऊपर। तो व्हाट इज इट्स ऑर्डर, तो ऑर्डर तो हम बगैर कुछ करे भी बता सकते हैं इसका, और डिग्री 1 था। ऑर्डर तो हम इसका बगैर कुछ करे बता सकते हैं, ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन डिग्री बताने के लिए पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो इसलिए डिग्री के लिए स्केलिंग बोथ साइड, तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर रेज टू पावर 2 इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डिग्री भी 2, पावर भी 2 नजर आ रही है। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, इनको हमें देखना पड़ेगा। एक मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, चलो एक एग्जांपल और बताता हूँ। एक एग्जांपल लिखता है, ये मैं बता तो चुका हूँ, आप कर सकते हो, इनको हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। फिर जो सेकंड एक्सरसाइज है इस टॉपिक में, इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है काम। सेकंड एक्सरसाइज में आप याद करो, जब 10th क्लास में थे आप, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती थी ऐसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्राइक इक्वेशन। एल्जेब्राइक इक्वेशन बोलते थे। एल्जेब्राइक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के कहते थे आपको करने की, फाइंड इट सॉल्यूशन। तो जब आप इसके सॉल्यूशन करोगे तो इसमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू एक 1 आता है, एक 2 आता है, वो इसके सॉल्यूशन हो जाते हैं 1 और 2। ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन है और ये इसके सॉल्यूशन है। तो आपको दोनों काम आते थे। अगर आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन दे दी तो उसके सॉल्यूशन निकालने आते थे, और अगर सॉल्यूशन दे दिए भी, मैं कहूँ आपको एक एल्जेब्रिक इक्वेशन निकाली हो, सॉल्यूशंस आर 1 and 2, तो अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 2 ले लेते थे आप, और वो इक्वेशन होती थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जो भी रूल होता था
तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 1 + 2 दैट इज 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऐसे आप इक्वेशन निकाल लेते हैं। और अगर इक्वेशन दे रखी होती थी तो आपके पास 3-4 मेथड होते थे। याद करो 10th क्लास में आप इसके फैक्टर कर सकते थे, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा सकते थे, या फिर कंप्लीट स्क्वायर कर सकते थे, इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते थे। अभी हमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही करना है। हमारे पास इक्वेशन दे रखी होती है अलजेब्रिक की बजाय डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके सॉल्यूशन निकालने होंगे। जैसे अब की बार हमारे पास इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, वट एवर इट इज, कोई भी हो सकती है, dy/dx + y = 0। तो उसके आपको सॉल्यूशन दे रखे होंगे। तो जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इनके सॉल्यूशन नंबर की सिस्टम में निकलते थे, जबकि इनके सॉल्यूशन फंक्शन की सिस्टम में निकलेंगे। y = x², y = sin x, y = ex, इस तरह के फंक्शन निकलेंगे। और जब आपको या फिर आपको फंक्शन दे रखा होगा तो उससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखे हैं तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से फॉर्मेशन, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बनाते थे, एक इक्वेशन बनाइए जिसके 2 रूट 1 और 2 हैं तो आप फटाफट बना देते थे इक्वेशन भी। यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा कि दिस इज अ फंक्शन फॉर्म द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। लेकिन इस बार ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, बस उनके सॉल्यूशन निकालने हैं, ये वाला टॉपिक हटा दिया। तो इस टॉपिक में बेटा क्या करेंगे, इस टॉपिक में भी हम अभी नहीं आएंगे, बल्कि अभी तो क्या दिया हुआ तुम्हें, अभी तो जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो ये होंगे कि देयर इज एन इक्वेशन एंड हुज रूट्स आर 1 and 2। तो आप चेक करके बताइए क्या 1 और 2 इस इक्वेशन के रूट हैं। क्वेश्चन आएगा x = 1 and x = 2 आर दे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो, आपको बताना है चेक करके। तो ये दोनों इसके रूट हैं या नहीं है, कैसे चेक करेंगे आप, f(x) की वैल्यू 1 और 2 इस इक्वेशन में रखोगे। अगर इक्वेशन में रखने से इसकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाती है देन दीज आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और अगर इक्वल नहीं होती तो रूट्स नहीं है। बिल्कुल सेम काम अब हमें करना है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं और साथ में उनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। जैसे मैं एक छोटी सी इक्वेशन लूँ, सपोज एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी मैंने, दैट इज dy ले लेता हूँ, d²y/dx² minus 9y = 0। This is differential equation and its solution is y = sin a(e⁻³ plus b(e⁻−3x)। This is the solution, ये इसका solution है। तो मेरा क्वेश्चन होता है आपसे, इज y = a(e⁻³ plus b(e⁻−3x) इज दिस, क्या ये जो फंक्शन लिखा है मैंने, इज इट्स सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे y दे रखा है तो आप ये y की वैल्यू उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन में रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर इसकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं। अब इसको रखेंगे कैसे, जैसे वहां पे x = 1 रख देंगे, जहाँ x की वैल्यू 1, फिर दोबारा से x की वैल्यू 2 रख देंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे करो, y की वैल्यू है तो ये y रख दो, लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस इज डबल डेरिवेटिव ऑफ y, तो जो y दे रखा है उसका डबल डेरिवेटिव करके रखो। तो पहले आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो आपकी डिमांड क्या है वहां पे। तो आपकी डिमांड मुझे लग रहा है सॉल्यूशन, आपको एक तो y चाहिए a(e⁻³ plus b(e⁻−3x), आपको एक तो ये चाहिए, दूसरा इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो dy/dx दैट इज a(e⁻³ into 3 plus b(e⁻−3x - 3), फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर दो बेटा, तो दैट इज a(e⁻3x into 9 हो जाएगा, और b(e⁻−3x) -3 और -3 मिलके 9 हो जाता है। तो दिस इज योर डबल डेरिवेटिव, दिस इज योर y। नाउ अब अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन टू प्रूव, हमें प्रूव जो करना है, दैट इज d²y/dx² plus -9y = 0 प्रूव करना है। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, d²y/dx² -9y, तो आप यहाँ पे d²y/dx² और y की वैल्यू पुट करो। दिस इज 9a(e⁻³ plus 9b(e⁻−3x) -9y, y is this one,
दिस इज वाई ए ई रेज टू पावर 3x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस 3x। अब दोनों बेटा कटते हैं, कट रहे हैं, देखो ये इससे कट जाएगा, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा एंड वी गेट 0, दैट इज अवर राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है वो उसने पूछा है क्या है फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें सेकंड एक्सरसाइज में आप चेक करना, सेकंड एक्सरसाइज में हमें सारे के सारे सॉल्यूशन भी दे रखे हैं और एक तरफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, तो पहले सॉल्यूशन लिखे हैं उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं। तो आपको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, अगर हैं तो आप ऐसे प्रूव करके दिखाएंगे और अगर नहीं है तो फिर इनको आप छोड़ देंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हो, दिस इज योर एक्सरसाइज 9.2। तो आप 9.1 और 9.2 एक्सरसाइज को बेटा कंप्लीट कर सकते हैं। डाउट्स वी विल डिस्कस लेटर ऑन, हम डाउट्स बाद में डिस्कस कर लेंगे।